Hello everyone, how are you guys? As you can see, we are starting a new series in which we are going to discuss all CAT previous year question from 2017 say 2021. I'm going to cover every topic of quant like percentages, profit and loss, ratio, proportion one by one, so that you can do all the relevant question from 2017 say 2021 in a single go, right? So the chances are pretty high that if the similar kind of question appear, you can do it pretty well. And as you know, my solution will be definitely better than the already available solution on the internet. Okay, so let's begin the session. If you're not on my Telegram channel, you can join it. That is location_unacademy. And as you know, I'm taking classes on Unacademy. So right now, one offer is going on, and that is valid till 31st of May only. I have given the description. I've given the information in the description box, in the comment box. You can check the details. And if you want to join my plus group and new course, then definitely you can avail that offer. Okay, so let's begin the session. What I want you to do right now, just pause this video, solve all the question by your own, and then check the answer later on. Do not watch the solution until and unless you try it by your own first. Okay, so pause it, solve it by own, and then check the answer with my solution. Okay, so let's begin. Arun's present age in years is 40% of Barun's age. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. By what percentage will Barun's age increase during the period? So, what I'll suggest, guys, first read the question properly, understand what is trying to ask, and then start solving the question. So, again, I'm going to solve most of the question by two ways. One is slightly traditional way, one is slightly shortcut. If you can do with a shortcut, then definitely your time will reduce. So first look at the normal way. Arun's present age is 40% of Varun's age. So normally how do we write it? Arun's present age is 40%, which is again, whether you want to write it 40% or you can directly write it 2 by 5 of Varun's age, 40%. So I can say that Arun's age and Varun's age का जो ratio है, that is 2:5. Okay. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. So let's assume that his age is, let's say, 2x and Barun's age is 5x. And after n years, Arun's age will be this much and Barun's age will be this much. What is asking? He is asking that after, he's saying that in n years, Arun's age will be half of Barun's age. So can I say this year, this age is half of this age? After n year, अरुण का एज हो जाएगा 2x+9, वरुण का एज हो जाएगा 5x+9. This age will be half of Varun's age. So if I solve it, I get 4x+2n, that is equivalent to 5x+n, and x comes out to be n. इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो x के बराबर है. तो वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट एज. व्हाट इज आस्किंग? ही इज आस्किंग बाय व्हाट परसेंटेज विल Varun's age increase during the period. So Barun's age earlier was 5x and now it has been increased by x. So what is the percentage increase? Percentage increase will be x out of 5x. So you can say during this period that age has been increased by 20%. So this is the normal way of doing it. You can just solve it with the help of n and then you can get the answer. But what I want you to think like that, once you get the ratio that Arun's age and Barun's age ka ratio is, let's say, 2:5. Now, rather going with n or something, can you think some numbers in which this age will become half of this age? Let's say if I add 1 both the side. तो खुद सोचो, अगर इसका एज अभी 2 होता, इसका एज 5 होता, तो एक साल बाद इसकी एज 3 हो गई होती, इसकी एज 6 हो गई होती. क्या इसकी हाफ नहीं हो गई? हाफ हो गई ना एक बार में. तो ये बताओ वरुण का एज कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 5. तो क्या आंसर यहीं पे 1/5 20% नहीं आ जाता? मेरे को क्या जरूरत है मैं इतना सब कुछ उसमें प्रोसेस करूं? यू कैन जस्ट ट्राई सम ऑफ द नंबर्स हियर इटसेल्फ एंड सी इफ यू आर गेटिंग द आंसर इजीली. इफ इट इज इजी देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. और मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है ना बहुत आगे जाके मिलेगा. आप 1 ट्राई कर सकते थे, 2 ट्राई कर सकते थे, 3 ट्राई कर सकते थे. अगर वो 37.5% बोलता तो आप 3/8 पे आंसर आ जाता आपका. आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ऐसे तो कर ही लोगे, तो आती है तुम्हें करना. What I'm suggesting think something like that so that it becomes easy.
That was the first question. Come to the next one. Now again, this is either you can do with the remaining or there's an easy question. I'll do this question by assuming 100. So let's say Ravi's income is 100, saving is 100. Ravi invests 50% of his monthly saving in fixed deposit. So can I say he invested 50 rupees in the fixed deposit? What is the remaining? Remaining is 50. Now what does he do? 30% of the rest means 30% of 50 rupees. His saving is invested in stock. So he's invested 30% of 50. 30% of 50 is 15 rupees investing in stock. That you can do it very easily. 30% of 50. That is 15 rupees. 15 rupees investing in stock. What is the remaining? Rest go in the saving bank. So saving bank में जो बचा हुआ है वो saving bank में चला जाता है जो कि है 35. If the total amount deposited by him in the bank, saving bank and fixed deposit, मतलब ये total 85 rupees is 59500. Ravi's total monthly saving is. So basically we have assumed 100. Then our saving in bank is coming out to be 85. But actual deposit is 59500. तो यहाँ पे जो 85 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 85 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 59500. तो हमें पूछा गया कि टोटल 100 किसको डिनोट करेगा. तो यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो सिंपल. 1 किसको डिनोट करेगा? 59500 डिवाइड बाय 85 को. 100 किसको डिनोट करेगा? इनटू 100. तो माय आंसर इज 20 by 17. दैट इज कैंसिल्ड आउट एग्जैक्टली 3500 into 20. आंसर आ गया 70,000. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. इफ यू assume 100, just proceed whatever is given in the question and then you can easily get the answer. Answer is 70,000. Theta question is there, so options are not given. So you have to write down 70,000 over. हर क्वेश्चन को पॉज करते जाना, खुद से सॉल्व करना, फिर मैच करना आंसर. मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि पॉज करो, अपने आप क्वेश्चन आ रहा है पॉज करना है एंड देन प्रोसीड. The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. So again, you can assume any number. This is basically in the category of miscellaneous question. If you have done my classes, then definitely you know how to do these kind of questions. So number of girls is twice the number of boys. So we are assuming the number of boys is 100. So number of girls is 200. If 30% of the girls, 30% of the girls and 45% of the boys got admission. So 45 of 100 means boys got admission is how many? Boys got admission is 45 and girls got 30%. 30% of 200 is 60 got admission. So total number of student who got admission is 105 out of total 300. So what is asking? He is asking the percentage of candidate who do not get admission. So do not get admission is 195 out of 300 into 100. I do not think that you will get an easier question than this in CAT. So answer आ चुका है 65%. You can check. This is 2017 slot 1 question. Answer is option number D. So do not get admission is 195. Subtract this 195 out of 300. Answer is 65%. Again, this is an easy question, guys. Out of the total shirt produced in a factory, 15% are defective, while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factories. Now again, you can do this question by taking 100 as well. Again, the similar kind of question जिससे हमने सेविंग बैंक वाला क्वेश्चन किया था उससे कर सकते हो. बट बिकॉज इसमें और कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्टली हमें सिर्फ रेस्ट पे दिया गया है, तो मैं इसको करने वाला हूँ रिमेनिंग के कंसेप्ट पे. रिमेनिंग का कंसेप्ट क्या होता है? अगर 15% डिफेक्टिव हैं, 15% का मतलब होता है 3/20. 15%, आई एम श्योर ये सबको आना चाहिए लिखना. 15% 5 से कैंसिल आउट कर दूँ, 3/20 डिफेक्टिव है. तो ये बताओ, अगर मैं टोटल हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, 1 में से अगर मैं 3/20 डिफेक्टिव हटा दूंगा तो कहना से 17/20 करेक्ट वाली है, सही वाली है. उसमें से मैंने 1/5 सोल्ड आउट कर दी. तो अगर आप 1/5 सोल्ड आउट कर दोगे तो बचेगा कितना? 4/5. इसको ऐसे लिख लिया करो, 30 - 20 - 3 17/20 इज करेक्ट एंड 1/5 सोल्ड आउट, तो बचा कितना? 4/5. तो आप इसको ना रिमेनिंग पे खेल सकते थे. जैसे वॉट एवर द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आर, उसमें से 15% तो डिफेक्टिव है, मतलब 3/20 तो डिफेक्टिव है, तो कहना से बची होंगी 17/20. टोटल में से माइनस कर दो, इतनी बची. इसका ये करेक्ट वाली है, सही वाली है, नॉट डिफेक्टिव. इसका 20% हमने बेच दिया डोमेस्टिक मार्केट, मतलब 1/5 बेच दिया डोमेस्टिक में, तो बचा कितना? 4/5.
सही का 1/5 भेज दिया, तो इतनी शर्ट हमने कर दी लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, और वो दी हुई है किसके बराबर, 8840 के बराबर। तो ये वाला आंसर आप स्ट्रेट अवे एक लाइन में निकाल सकते हो, इसमें 100 भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको रिमेनिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये आ गया 520, ये आ गया 130, और ये आ गया मेरा आंसर 13,000। खत्म। दैट इज आंसर गाइस, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो एक लाइन में हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, रिमेनिंग पे आप खेल सकते हो इस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द कंसेप्ट जिसमें हम करते थे प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 थिंग्स इज इक्वल टू थर्ड थिंग, यू कैन इक्वेट इट। The production of the food grain increased by 40% in the per capita production. Now understand, whatever the population is, whatever the population is, if I multiply with per capita production, what do I get? I get the total production. Population into per capita, yeah, per capital production, I'll get the total production. So population, we do not know, let it be P. Per capita production has been increased by 27%, so it will become 127%. If something has been increased by 27%, so can I say it will become 127%? And the total food production has been increased by 2 by 5. So if food production has been increased by 2 by 5, can I say it will become 7 by 5? I'm sure इतना आप सबको आता है, 2 by 5 अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो जाएगी तो 7 by 5 हो जाएगी, ये ऐसे फटाफट से लिखा करो। तो ये आ गया 20, तो पॉपुलेशन आ गया मेरे पास 140 बाय 127। इंक्रीज कितना हो गया, पहले 127 था, 140 हो गया, ये हमेशा ओरिजिनल मानते हैं इसको हम हमेशा न्यू मानते हैं। तो पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज हो गया 13 से आउट ऑफ ओरिजिनल विच इज 127। तो आप खुद सोचो अप्रोक्स आंसर क्या आएगा आउट ऑफ दीज ऑप्शन, व्हाट इज अप्रोक्स आंसर। अगर ये 130 होता तो 1/10 हो गया होता ना, उसी के आसपास है, उसी के आसपास है आंसर 1/30। अगर 130 होता तो 1/10, तो आंसर 9 मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आउट ऑफ ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन आंसर इज अप्रॉक्स 10%, थोड़ा सा ज्यादा, बट आउट ऑफ द ऑप्शन इट हैज टू बी 10% ओनली। यू नीड नॉट टू सिर्फ फ्रैक्शन पे खेलो। तो फ्रैक्शन आ गया 13 by 127 विच इज 1/10 अप्रॉक्स, 1/10 इज 10%। बस इतना सी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं फ्लो में कर रहा हूँ तो हो सकता है मैंने कुछ नंबर इधर तो लिख दिया हूँ, वैसे चांसेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आंसर ठीक आना चाहिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। In an examination, the maximum possible score is n, while the pass marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks and fall short of pass marks by 68%. Now, what does it mean? It means ये जो 36 मार्क्स आए हैं ये पासिंग मार्क्स से 68% कम है। तो कैन आई से ये सिर्फ 32% है। अगर कोई चीज पासिंग मार्क्स से 68% कम है तो कैन आई से ये जो 36 मार्क्स हैं ये पासिंग मार्क्स का सिर्फ 32% है। एवरीबडी, तो यहां से हमारे पास पास मार्क्स आ जाएंगे, अगर मैं 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, पास मार्क्स आ गए मेरे पास 900/8, चाहे तो आप फर्दर और कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट इज 2/25। सो पास मार्क्स आ गए मेरे पास 225/2। लेट इट बी लाइक दिस, 225 divided by 2, that is the pass marks, 112.5। I'm not solving it, I'm just leaving it like that। पास मार्क्स जो है वो क्या है, वो 45% ऑफ n है, यानी कि ये वाले जो नंबर हैं 225/2, दैट इज 45% ऑफ n। क्या इतना सा क्वेश्चन नहीं है गाइस? तो ये खत्म हो जाता, ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, ये 50 आ गया, और n की वैल्यू आ गई आपके पास 50 into 5 विच इज नथिंग, विच इज 250। तो n की रेंज देखो किस रेंज में आ रहा है, 250 इस रेंज में आ रहा है, इसके तो बाहर नहीं है, इसके तो अंदर नहीं है, इसके कम नहीं है। तो जो आंसर आएगा उसने रेंज में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 243 से 252 के बीच में आएगी n की वैल्यू, विच इज इन द गिवन इन द ऑप्शन बी। और मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नहीं कि ये मत बोलना कि सर ने इजी क्वेश्चन पिक कर लिए हैं या कुछ छोड़ दिए हैं। आई एम नॉट लीविंग अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम 2017 से 2021, आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। Okay, so if it is looking easy, because the solution is easy, so if you can solve these questions like this, definitely आपका approach बढ़िया हो जाएगा। Now look at this question again. In a class 60% of the students are girls and rest are boys. So if there are 100% of the students
Can I say girls will be 60% and boys will be 40%? 30 more girls than boys. So if difference is 20%, can I say ये जो 20% का difference है ये 30 के बराबर है? बिकॉज जो गर्ल्स हैं वो इससे 30 ज़्यादा हैं, तो 20% का जो डिफरेंस है दैट डिनोट्स 30. सो 100% विल डिनोट हाउ मच? 150. यानी कि आपको पता चल गया कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो 150 थे. 60% गर्ल्स थी, मतलब 90 गर्ल्स थी और 60 बॉयज थे. तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं. 130 टोटल स्टूडेंट है जिसमें हमारे पास 90 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज. Now next line पढ़ते हैं. If 68% of the students including 30 boys pass an examination, 68% of the student मतलब 150 का 68% पास हो गया. 102 टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं जिसमें से के 30 बॉयज हैं. तो बॉयज अगर 30 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? रिमेनिंग गर्ल्स होंगी 102 minus 30. 72 girls have been passed. The percentage of the girls who do not pass. Now out of 90 girls, if 72 has been passed, how many girls do not pass? Percentage of girls do not pass is 18 girls. 18 girls were not passed out of 90. So 18 out of 90 were not passed. So percentage will be 1 by 5, which is 20%. 20% of the girls did not pass the examination. Rest has been passed. 72 has been passed. 90 में से 72 पास हो गई तो बची कितनी? 18 out of 90. 20% did not pass the examination. क्लियर? तो यहाँ पे जो नंबर एज्यूम करना था वो आप 100 से नहीं कर सकते आपको, क्योंकि उसने एक्चुअल नंबर दिया हुआ है तो आप 100 नहीं मान सकते. इस बार आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर यू हैव टू प्रोसीड. करते जाओ, बस जो भी बोल रहे हैं करते जाओ. Now look at this question. Meena scored 40% in examination after review. Even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7% marks more than the passing marks. तो यहाँ पे देखो, पहले उसके मार्क्स थे 40%, अब उसके मार्क्स 50% से बढ़ गए. 50% से बढ़ गए मतलब 40% का 50%, 40% का 50% मतलब 20% से इंक्रीज हो गए. तो अब उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 60% आ रहे हैं. बट ये जो 60% मार्क्स हैं, 40 का 50%, आप समझ रहे हो ना, 40 का 50% इज 20. तो अगर आप इसको 20 से बढ़ा दोगे तो 60% मार्क्स आ गए उसके. बट स्टिल ये जो मार्क्स हैं वो पासिंग से 35 कम है, क्योंकि अभी भी वो 35 से फेल है. अब वो बोला कि ये वाले मार्क्स 60 जो मार्क्स थे वो उसको और हम फर्दर 20% से बढ़ा दें. तो 60 का 20% इज 72%, 12% बढ़ जाएंगे. तो 72% अगर उसके मार्क्स आते हैं, नाउ शी गॉट 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग. The percentage score needed for the passing the examination. Now this is the question, how to solve it. If you see the percentage difference, that is 12%, and if you see the numerical difference, that is 42. यानी कि इसके जो मार्क्स हैं उनमें परसेंटेज वाइज तो 12% का डिफरेंस है, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज उनके मार्क्स में जो डिफरेंस है वो 42 का है. अब खुद बताओ, अगर 42 12% को डिनोट कर रहा है तो 7 किसको डिनोट करेगा? इसका 1/6, इसका 1/6, तो ये 2%. मैंने पूरा नहीं निकाला, मुझे यहाँ पे 7 नंबर दिख रहा है. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 42 अगर 12% को डिनोट कर रहा है तो 7 किसको डिनोट करेगा? 2% को डिनोट करेगा ना. 1/6 कर दिया तो यहाँ से भी 1/6 कर देना. तो यानी कि ये वाले जो मार्क्स हैं वो 2% हैं, यानी कि जो 72% मार्क्स हैं वो पासिंग से 2% ज्यादा हैं. तो पास होने के लिए कितने चाहिए भैया? पास होने के लिए चाहिए 70% मार्क्स. खत्म हो गया क्वेश्चन. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पास मार्क्स कितने हैं, डायरेक्टली आप पास परसेंटेज निकाल सकते हो. जिन्होंने अभी मेरी रिसेंट वाली क्लासेस देखी हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने का मैंने तरीका बता दिया है. इसी तरह से आप फटाफट से निकाल सकते हो. मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं जरूरत नहीं है, पास मार्क्स कितने हैं जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पास परसेंटेज आप निकाल सकते हो. आप 35% निकाल सकते थे. अगर 7 2% को डिनोट कर रहा है तो 35 किसको डिनोट करेगा? 10% को. तो आप 10% यहाँ पे ऐड भी कर सकते थे, फिर से 70% ही नंबर है. करेक्ट आंसर इज 70. तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो बिना कुछ निकाले हुए. आप सोल्यूशन देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ ये वाला सोल्यूशन आपको इस तरह से कहीं मिलेगा नहीं. पूरे आप इंटरनेट ढूंढ लेना, यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन ओवर देयर. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. The income of Amla is 20% more than Bimla and 20% less than Kamla.
तो जो आमला का इनकम है वो 20% ज्यादा है, मतलब 1/5 ज्यादा है, मतलब 6/5 है बिमला का। आपको ये अब लिखना आ गया होगा, आई एम श्योर। एंड 20% लेस देन कमला। 20% कम है, मतलब 4/5 है। आमला के ही इनकम की बात हो रही है, तो दैट इज 4/5 ऑफ कमला। If Kamala's income goes down by 4% and Bimla's goes by 10%. So basically I'm looking for a relationship between Kamala's and Bimla's income. So how do I get a relationship? I can either equate or I can divide. Let's say ये भी Amla का income है, ये भी Amla का income है, तो I'm putting it equal. तो 6/5 of Bimla is equal to 4/5 of Kamala. ये कैंसिल आउट हो गया। तो बिमला और कमला का जो इनकम है उसका रेशियो आ गया आपके पास 4:6। तो मान लेते हैं इसकी इनकम 400 है, इसकी इनकम 600 है। What is saying now? कमला's इनकम गोज डाउन बाय 4%। तो कमला का इनकम 4% से कम हो गया, मतलब 24 से कम हो गया। 24 से अगर कम हो गया तो 576 हो गया। एंड बिमला का इनकम 10% से बढ़ गया, मतलब 40 से बढ़ गया, तो 440 हो गया। देन द परसेंटेज ऑफ बाय विच कमला's इनकम वुड एक्सीड बिमला's इनकम। कमला का इनकम बिमला की इनकम से कितना एक्सीड करेगा? कितना एक्सीड करेगा? 136। किससे? 440 से। बेस में आएगा 440, क्योंकि बिमला से कंपैरिजन आपको करना है। तो करेक्ट आंसर इज 136 by 440। इफ आई कैंसल आउट विद 8 लेट्स से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17 एंड 55। 17 by 55 मुझे कैलकुलेट करना है। ईदर यू कैन डू इट 11 by 55 प्लस 6 by 55। अगर आपको फ्रैक्शन को ब्रेक करना आता है, जो आपको सिखाया गया है, तो मैं इसको इंटू 100 नहीं करूंगा, मैं इसका फ्रैक्शन फैक्टर देखूंगा। 11 मेरे को दिख रहा है, 1/5 20% ये आ गया। मैं इसको फर्दर 5/55 लिख सकता हूँ, और मैं इसको 1/55 लिख। अब तरीका देखो, मैं एग्जैक्ट आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये 1/5 है, विच इज 20%, दैट इज 1/11, दैट इज 9.09%। एंड अगर 1/11 9.09 होता है गाइस, तो 1/99 उसका 1/5 होगा लगभग। 1/5 अगर मैं करता हूँ तो 1.8 के आसपास आएगा। तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा गाइस 29 + 30 30.89 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। नियरेस्ट पूछ रहा है आउट ऑफ गिवन ऑप्शन, तो आंसर आएगा 31। तो अगर आपको फ्रैक्शन ब्रेकआउट करना आता है, आप इस तरह से लिख सकते थे। नहीं तो मैंने यहाँ पे 4/6 लिया, इसको 2/3 लिख सकते थे, तो आई थिंक कैलकुलेशन और आसान हो जाती, तो आपका आंसर एक बार में ही आ जाता। आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, आप इसको इंटू 100 करके भी निकाल सकते थे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको फ्रैक्शन को ब्रेक करना सिखाया, इस तरह से ब्रेक कर लिया था। करेक्ट आंसर इज 31%। कैसे भी निकालो, आंसर ये है। ये वाला देखते हैं, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका तरीका सीखो। जिन्होंने क्लास करी है ऑब्वियसली उनको तरीका आता है, बाकी लोग जिन्होंने नहीं देखी है वो देखो कैसे करते हैं। 2010 में टोटल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जो कैटेगरी की बुक थी वो थी 11,500। In 2015, the library contained a total of 12,760 books. What is the increase? Increase हो गई 1260 से। किसकी वजह से? During this period, there were 10% increase in the fiction category. Fiction में 10% का increase हुआ है, और there was a 12% increase in the non-fiction category. Non-fiction में 12% का increase हुआ, तब जाके वो हो गई 1260। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बताओ, अगर वो आपसे बोलेगा कि फिक्शन बुक 10% से बढ़ी है, और मैं बोलता कि यार ये भी अगर मैं 12 नहीं लेता, इसको भी मैं 10 मान लूं इंस्टेड ऑफ 12, तो कैन आई से टोटल बुक शुड इंक्रीज बाय 10%? इंस्टेड ऑफ 12 अगर मैं इसको भी 10 ले लूं, तो मैं बोलूंगा ना टोटल बुक ही 10% से बढ़ी होंगी। अगर मैं 11,500 को अगर 10% से इंक्रीज करता, तो मेरा आंसर वुड हैव बीन 1150। लेकिन इंक्रीज तो 1260 का हो रहा है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना 110 का, ये बोल सकते हो इस 2% की वजह से आ रहा है। फिक्शन नॉन फिक्शन का 2% एक्स्ट्रा है ना, वो उसका जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 110 को डिनोट कर रहा है, यानी कि 2% ऑफ नॉन फिक्शन डिनोट्स हाउ मच? डिनोट्स 110। सो अगर 2% ऑफ नॉन फिक्शन 110 को डिनोट कर रहा है गाइस, तो ईदर यू कैन डायरेक्टली गेट 100% ऑफ नॉन फिक्शन कितना होगा, नहीं तो आप चाहे तो लिख के भी कर सकते हो। 50 टाइम्स है वैसे तो 55 100 आपका डायरेक्टली आना चाहिए था, 55 स्ट्रेट अवे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी लिख के कर सकते हो। 2% ऑफ नॉन फिक्शन इज 110, तो ये आ जाएगा आपका 5500। नॉन फिक्शन अगर 5500 है ये, लेकिन ये 2010 में है। कभी कभी हम गलती ये करते हैं कि यहां तक निकाल के यही आंसर मार्क कर देते हैं।
ये भी दिख रहा है ऑप्शन में, लेकिन उसे क्या पूछा है, उसे पूछा हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर इन द लाइब्रेरी 2015 में कितनी थी। तो आप पहले फिक्शन निकालो, 2010 में कितनी थी। रेस्ट ऑफ द बुक्स आर फिक्शन बुक विच इज 6000, ये 2010 की हैं। लेकिन ये जो फिक्शन बुक है ये कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई हैं, ये 15% से, ये 10% से इंक्रीज भी हुई है ना फिक्शन बुक। तो इसका आप 10% ऐड करोगे तो आपकी फिक्शन बुक आएंगी 6600 इन 2015। इसका 10% ऐड कर दो, तो फिक्शन बुक 2015 में कितनी है, दैट इज 6600 days. So that is the answer, not 5500, not 6160 straight away. You will get the answer 6000 plus 10% which is 66. तरीका आपने सीख लिया, जो भी इजी नंबर होता है उसको फिक्स कर देते हैं, जितना एक्स्ट्रा या जितना कम है उसके बेसिस पे आप डिफरेंस निकाल के स्ट्रेट अवे यू कैन कैलकुलेट एक ही बार। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, किसी एलिगेशन की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपने मेथड सीख लिया तो। अगला देखते हैं। Again, this was a very easy question, guys. The score of A was 10% less. तो आपको पहले तो यही बार बार समझ में आना चाहिए कि लेस मोर पे कैसे खेल रहे हैं। 10% लेस मतलब 1/10 लेस, 1/10 मतलब 9/10, 25% मोर, 25% मोर मतलब 1/4 मोर विच इज 5/4, एंड 1/5 लेस, 1/5 लेस मतलब 4/5। आपको ये समझ में आ गया हो, लेस है तो माइनस करना है, लेस है तो माइनस करना है, मोर है तो प्लस करना है। कंपेयर करते जाओ, ए का जो स्कोर है वो 10% कम है, मतलब 9/10 है। बी का, यहाँ पे बी आना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे बी नहीं लिख रहा बिकॉज बी का जो स्कोर है वो 1/4 ज्यादा है, यानी कि 5/4 है सी का। यहाँ पे सी आना चाहिए था, लेकिन जो सी का स्कोर है वो 1/5 कम है डी से, तो 4/5 है डी का। तो आप क्यों मेहनत करोगे, आप सीधा एक लाइन में आंसर निकालोगे ना यार। ए और डी का रिलेशन डायरेक्ट आ गया आपके पास, दैट इज 9/10। ए का स्कोर गिवन है 72, यानी कि 9 डिनोट कर रहा है 72 को, 1 डिनोट करेगा 8 को, तो 10 डिनोट करेगा 80 को। यही पूछ रहा है आपसे कि डी का स्कोर कितना था। आंसर आ चुका है, डी का जो स्कोर था वो था 80। तरीका देख लो आप, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है अलग अलग, स्ट्रेट अवे यू कैन गेट द आंसर। आंसर इज 80। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है, समझ पा रहे हो, लाइक कर देना सेशन को, बिकॉज बीच बीच में आप लोग निकल जाते हो फिर, तो लाइक करके जाना अगर पसंद आ रहा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करना। अगला देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर आर यंग while the rest are old. If 65% of the members are literate and 25% of the literate are young. Now, in this question अगर आप 100 assume करते हो तो आप देखो जितने भी लिटरेट हैं, 65 लिटरेट है, लेकिन उसका आपको 1/4 करना पड़ेगा, फिर आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन जरूर देखा करो कि फ्रैक्शन में मुझे अल्टीमेटली करना क्या है। मुझे पहले 65 निकालना है, उसका फिर 1/4 भी करना है, तो इसको पहले से ही 4 का मल्टीपल ले लो। मान लो टोटल जो पीपल है वो 400 है, instead of taking 100 take it 400। 28% are 28% of member are young, so can I say 400 ka 28% which is 112 are young, then old will be how much, remaining will be old, 288। now 65% are literate, so 400 का 65%, 65 into 4 कर देना, 65 into 4 comes out to be 260 are literate। If 260 are literate, then how many are illiterate? Illiterate would be 140। 25% of literate are young, इसका 1/4 young है literate, तो 260 का 1/4 करोगे तो 65 आ गया। 65 young literate हैं। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है the percentage of old among illiterate। तो अब ये बताओ, अगर यंग लिटरेट 65 हैं तो कैन आई से रिमेनिंग 195 विल बी ओल्ड लिटरेट। if 195 are old literate and there are 288 total old, so can I say remaining old will be illiterate, which is 93। 93 will be illiterate, and the percentage of old people among the illiterate, and how many are illiterate, 140 are illiterate, in which 93 are old। so what is the percentage required, percentage required is 93 old out of 140 illiterate। so मुझे ये कैलकुलेट करना है। अगेन आई विल नॉट कैलकुलेट दिस, क्या मैं देख पा रहा हूँ ये 7 का मल्टीपल है, तो क्या मैं इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग 93 कैन आई टेक 91। इफ आई टेक 91 तो मेरा आंसर आना चाहिए था 13/20 which is 65%, which is 65%। my answer will be slightly more than that, क्योंकि मैंने 93 की बजाय 91 लिया है, तो मेरा एक्चुअल आंसर शुड बी मोर देन दैट। तो 65 से
पास वाला और उससे बड़ा वाला आंसर चेक कर लो, तो आंसर आ जाएगा 66%। मैं यही आपको समझा रहा हूँ, आपको कैलकुलेट नहीं करना होता एग्जैक्ट। इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम लगाओगे, लेकिन मैंने इसके आसपास वाला 7 का मल्टीपल देख लिया, मेरे लिए कैलकुलेशन हो गई इजी। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। करेक्ट आंसर है 66%। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने 100 ले लिया होता, आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई होती। और जरा मेरी कैलकुलेशन देखो, आई एम डूइंग इट स्मूथली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द नंबर्स व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। Look at the next one. In May, John bought the same amount of rice and the same amount of wheat as he bought in April. So let's say in April also he bought some wheat and some rice. The same amount he is buying in the May also, but he spent 150 more due to the price increase of rice and wheat by 20% and 12%. तो जो राइस का प्राइस है वो 12% इंक्रीज हुआ है, और जो व्हीट का प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट ही नीड्स टू पे 150 more. If John had spent 450 on rice in April, तो अगर उसने अप्रैल में 450 खर्च किए होते गाइस, तो उसका 12% उसको मई में ज्यादा देना पड़ रहा है। 450 का 12% आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 10% निकाल के 2% निकाल सकते हो, या लिख के कर लिया करो अगर आप ये सब कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर पा रहे। तो ये आ जाएगा आपके पास 54। तो राइस की वजह से उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? राइस की वजह से जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 54, और टोटल उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? टोटल उसको देना पड़ रहा है 150। 150 में से 54 तो राइस की वजह से एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो कहना है व्हीट की वजह से उसको 96 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और ये जो 96 है गाइस वो 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि व्हीट का जो 20% है दैट डिनोट्स 96। तो यानी कि व्हीट का जो 1/5 है दैट इज 96। तो उसने व्हीट पे कितना खर्चा किया था अप्रैल में? दैट वाज 480। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मे? तो मई में कितना खर्चा कर रहा है? 480 तो अप्रैल में किया था, 96 और ज्यादा कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 576। अगर एक ऑप्शन 480 होता तो काफी लोग उसमें भी फंसते। 576 शुड बी द ऑप्शन। मैंने कहा गलती की। देखते हैं एक बार दोबारा। 150 wheat पे 20%, 12%। जॉन स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल। 450 का 12%, 450 का 12% शुड बी 2, 6, 9, 54. If it is 54, then the remaining is 96. Wheat का 20% इंक्रीज हुआ है। ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया है। चलो एक बार दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को गाइस। ये होता है क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा है। राइस इज 20%, व्हीट इज 12%, तो हमने उल्टा लिया होता। अप्रैल में जो राइस का इंक्रीज हुआ है अप्रैल से मई में, राइस पे इंक्रीज हुआ है 20% का, व्हीट पे इंक्रीज हुआ है 12%। अप्रैल में उसने जो राइस पे स्पेंड किया था वो था 450, तो 450 का 20% यानी कि 90 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको मई में, और टोटल जो उसने एक्स्ट्रा दिया वो दिया 150। तो यानी कि कहना है 60 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको व्हीट की वजह से, विच इज 12% इंक्रीज। तो व्हीट का 12% इज 60। तो व्हीट पे यानी कि उसने जो पहले पैसा खर्च किया था वो था 500। अब कितना खर्च किया है? 60 रुपीज एक्स्ट्रा। तो मई में कितना खर्च किया है? 560। तो ये नंबर और भी आसान थे। हमने जो नंबर लिए थे वो थोड़े मुश्किल थे, ये नंबर और भी आसान थे, तो और आसान हो गया क्वेश्चन। आंसर आएगा 560। तो जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने भी करी। ये वाला देखता है, विष्णु स्कोर्ड 52% एंड आशा स्कोर्ड 64%। तो विष्णु का जो स्कोर है दैट इज 64%, आशा का जो स्कोर है वो है, विष्णु का जो स्कोर है वो है 52%, और आशा का जो स्कोर है दैट इज 64%। And these score are, the marks obtained by Vishnu are 23 less and that by Asha is 34 more than the marks scored by Ramesh. तो यानी कि ये वाले जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 कम हैं। पासिंग मार्क्स जैसे क्वेश्चन है ये। और ये वाले जो मार्क्स हैं आशा के वो 34 मार्क्स ज्यादा हैं रमेश से। तो क्या देखो ध्यान से, क्या ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है पासिंग मार्क्स वाला? तो क्या बोल सकते हो, इनके मार्क्स में जो डिफरेंस है न्यूमेरिकली वो 57 मार्क्स का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12% का डिफरेंस है।
12% 57 को डिनोट कर रहा है। क्या पूछा उसने? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। अब इसमें देखो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले 100% निकालेंगे, फिर उसका 84% निकालेंगे। क्या जरूरत है यार, 12% किसको डिनोट कर रहा है? 57 को। तो गीता ने कितना स्कोर किया? 84%। तो क्या आप डायरेक्टली 84% नहीं निकाल सकते? क्या ये 7 टाइम्स है तो क्या आंसर इसका 7 टाइम्स नहीं हो जाएगा डायरेक्टली? 350 प्लस 99, क्या आंसर डायरेक्टली 399 नहीं आ जाएगा? यही सब छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको याद रखिएगा। इस 100% निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों निकालूं? टोटल मार्क्स कितने में थे, आई कैन डायरेक्टली गेट द 7 टाइम्स ऑफ दैट। तो यहाँ पे भी 7 टाइम्स आ जाएगा। आंसर आ चुका है मेरा 399। Go to the next one. Now look at this question. Raj invested 10,000 in a fund. At the end of first year, he incurred a loss, but his balance was more than 5,000. What does it mean, guys? ये लाइन देने का क्या मतलब है? ये लाइन देने का मतलब है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 था, उसको कुछ लॉस हुआ, बट अभी भी उसके पास जो बैलेंस है वो 5,000 से ज्यादा है। यानी कि उसका जो लॉस था वो 50% से कम था। क्योंकि अगर उसका लॉस 50% हुआ होता तो 5,000 का लॉस हो गया होता कम से कम, फिर उसके पास 5,000 नहीं बचते, उससे कम बचते। तो उसका जो लॉस था वो 50% से कम था। इस लाइन का मतलब ये है, ये ध्यान रखना। अब वो क्या कर रहा है? दिस बैलेंस, जो भी बैलेंस था, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of Raj from the initial investment over the 2-year period is 35%, then the percentage of loss in the first year is. Now इस क्वेश्चन को आप या तो ऑप्शन से कर लो, बहुत आसान है। ऑप्शन से करोगे तो कैसे करोगे? अगर पहले साल का लॉस 15 है, ध्यान से देखना, सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको आता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। एलिगेशन की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, आप सक्सेसिव लगा के कर लो। तो अगर ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन से जा सकते हो। 15% का लॉस, तो सेकंड में उसको 75% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 5 टाइम्स लेना है। तो अल्टीमेटली जो उसको प्रॉफिट आना चाहिए वो आना चाहिए 35%। क्या इससे 35% आ रहा है? देखते हैं। 50 माइनस, अब ये तुम्हें दिख रहा है क्या ये डेसिमल में आंसर आएगा? तो ये कभी 35 तो नहीं आ सकता। ये 45/4 है, 11.25 है, तो ये 35 तो नहीं है। तो आप छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन उठाओ। 5 उठाओगे तो कभी भी -5 प्लस 25 करोगे तो 20 यहीं पे आएगा, उससे छोटा आंसर आएगा क्योंकि नेगेटिव आता है। तो ये 35 कभी नहीं आ सकता। लुक एट 10, अगर आप 10 उठाते हो तो -10 प्लस 50 प्लस -10 इंटू 50 अपॉन 100, क्या ये 35% आ रहा है? ये 40 आ गया, ये -5 आ गया 35%। तो चाहे तो आप ऑप्शन से जा सकते थे, बहुत ही आसान था। नहीं तो फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर पहले साल का लॉस x है तो दूसरे साल का प्रॉफिट 5x होगा। अगर ऑप्शन नहीं होते तो पहले साल का लॉस अगर x है तो दूसरे का 5x होगा। तो अल्टीमेटली जो उसको लॉस, जो उसको प्रॉफिट आना चाहिए, दैट शुड बी 35। दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहां से भी आंसर आ जाएगा, दैट इज 20, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, दैट इज 35। क्वाड्रेटिक बनेगी, यह आएगा 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700। और आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है गाइस, 70 एंड 10। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे, 700 को ऐसे फैक्टराइज करोगे ताकि 80 आ जाए, तो 70 एंड 10 आएंगे, साइन चेंज हो जाता है। तो x की दो वैल्यू आ रही है 70 एंड 10। बट यहाँ पे जो लाइन लिखी गई, अब समझ में आ रहा है? मतलब लॉस जो है वो 50 से कम है। लॉस अगर 50 से कम है तो आंसर 70 नहीं हो सकता, आंसर आएगा 10। और इसीलिए उसने ऑप्शन में 70 भी दिया है, अगर आप लॉजिकली समझ पा रहे हो। क्यों दिया उसने 70? क्योंकि दो आंसर वैलिड है और दोनों ही वैलिड है। अगर ये लाइन नहीं बोली गई होती तो आपके दोनों आंसर आते। फिलहाल आपका आंसर ये वाला वैलिड नहीं है, ओनली वैलिड इज 10%। तो इस लाइन का इंपॉर्टेंस यही था कि लॉस हैज टू बी लेस देन 50, इट कैन नॉट बी 70। तो ऑप्शन है, ऑप्शन से कर लो, नहीं है तो इक्वेशन बना के कर लो, दोनों तरीके से आना चाहिए। ये वाला देखते हैं। A box has 450 balls, each either white or black. टोटल 450 है, या तो ब्लैक होंगी या व्हाइट होंगी। There being as many metallic white balls as metallic black balls. If 40% of white balls and 50% of black balls. Black ball का 50% metallic है, white ball का 40% metallic है, और दोनों बराबर हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा यार, खत्म हो गया। तो ब्लैक और व्हाइट का रेशियो आ गया आपके पास 4:5। ब्लैक और व्हाइट का रेशियो आ गया 4:5। 450 को अगर मैं 4:5 में बांटूं
टोटल है 9, 9 450 को डिनोट कर रहा है, तो 1 डिनोट करेगा 50 को, तो ब्लैक बॉल आ जाएंगी 4 विच इज 200, और व्हाइट बॉल आ जाएंगी 5 विच इज 250। दोनों आ गई। टोटल नॉन मेटेलिक बॉल पूछ रहा है आपसे, तो आप ये बताओ ब्लैक बॉल का कितना परसेंट मेटेलिक है। मेटेलिक बॉल ब्लैक का है 50%, तो 200 का 50% मतलब 100 ब्लैक, वाइट, ब्लैक बॉल मेटेलिक है, तो अगर 100 ब्लैक है तो 100 वाइट भी होगी क्योंकि दोनों बराबर है, या आप इसका 40% निकाल सकते हो। तो 200 मेटेलिक बॉल है आउट ऑफ 450, तो पूछ रहा है नॉन मेटेलिक कितनी है, तो नॉन मेटेलिक कितनी हो जाएगी 250, खत्म आंसर। 450 minus 200 will give the answer, that is 250। और ये सब मैं मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कहीं रटे हुए आंसर तुम्हारे सामने देखा, आपने गलती भी करेंगे, तो आप ऐसे करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ स्मूथली। बस क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, आई थिंक विद इन 20-25 मिनट्स वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन कैट के हमने स्मूथली कर दिए हैं ऐसे ही। तो अगर आपका लॉजिक क्लियर है, फ्रैक्शन पे खेलना आता है, तो you can do all these questions like this, guys. So very good luck. We will come up with more such video, and as I said, offer is lasting ending today itself, तो अगर आप सीरियस हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जरूर देख लेना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ओके, सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।